Pakistan's economic crisis is worsening. Islamabad to implement economic reforms. سخت فیصلوں کے ساتھ پاکستان کو مشکل سوالوں کے جوابات بھی دینا پڑیں گے. Pakistan's economy has always been in flux. IMF کا مہنگائی کے حساب سے مانیٹری پالیسی میں سختی کے لیے دباؤ ہے. Default or debt restructuring is an increasingly real possibility. This is another blow to Pakistan. On the brink of an economic meltdown, a country of 220 million struggles with sky-high prices. Islamabad is rushing to expedite the passage of fiscal measures. کیا پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے؟ پاکستان اپنی آزادی کے 75 سال کے بعد بھی IMF سے آزادی حاصل نہیں کر سکا ہے. معاشی طور پر ہم ہمیشہ سے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں. تقریباً ہر 2.5 سے 3 سال کے بعد ہم IMF کے در پر کھڑے ہوتے ہیں. اب تک مجموعی طور پر ہم 23 مرتبہ IMF کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا چکے ہیں، جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہماری معاشی ترقی، ہماری پیداواری صلاحیت، بے روزگاری، تعلیمی نظام، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ، ہمارے شہر، سول سروس اور بیوروکریسی کا نظام، ہمارے ریگولیٹری ادارے، کاروباری صلاحیت اور مواقع، یہ تمام اشاریے پہ ہم تنزلی کا شکار رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کسی ایک شخص یا ادارے کی وجہ سے اس بری حالت میں نہیں پہنچی. یہ ہم سب کی مجموعی نااہلی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے آج اس نہج پر پہنچی ہے. پائیڈ قومی تھنک ٹینک ہونے کے ناطے ہمیشہ سے ان تمام مسائل پر بات کرتا رہا ہے. پائیڈ پچھلے 6 دہائیوں سے معیشت، تعلیم، بے روزگاری، پیداواری صلاحیت، نوجوانوں کے مسائل، شہری بے ہنگمی اور اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر ڈیبیٹس، ویبینارز، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کرواتا رہا ہے. ایکون فیسٹ، پائیڈ، راستہ اور PSDE کی کوششوں کا ثمر ہے. ایکون فیسٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کی معاشی بیٹھک ہوگی کہ جس میں علاقائی اور قومی سطح سمیت ادارہ جاتی اور انفرادی سطح پر بھی معیشت کو جانچا جائے گا. ایکون فیسٹ 2 دنوں میں مختلف ڈیبیٹس، سیشنز، ڈاکیومنٹریز اور ایگزیبیشنز کے ذریعے ملکی معاشی مسائل کو بہترین حل کے ساتھ اجاگر کرے گا. ہم پائیڈ میں یہ چاہتے ہیں کہ قومی کنورسیشن ہو. میری یہ ڈریم رہی ہے کہ قومی کنورسیشن ہو. انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہوئی. بہت تحقیق بھی کی ہے ہم نے کہ قومی کنورسیشن شروع کریں، ایک قومی ڈیبیٹ کریں. مسئلوں، ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ان میں سے کیوں نہیں کوئی بل گیٹس، کوئی ایلن مسک نکلتا، ہمارے پاس بڑی بڑی کمپنیاں کیوں نہیں ہیں جیسی باقی ملکوں میں ہیں، ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں وہ ہیں جو ہونی چاہیے 230 ملین ملک کی. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ایکون فیسٹ کر کے آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کریں. آپ کو سب سے اچھے مفکر پاکستان کے اور باہر کے بھی پیش کریں. آپ کو ایسے آئیڈیاز پیش کریں جو آپ کو جگائیں اور کہیں کہ ہاں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. سب یونیورسٹیز کا ایک نیٹ ورک بنائیں. دنیا پالیسی کمیونٹی سے چلتی ہے، نیٹ ورک سے چلتی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نیٹ ورک بنے مفکروں کا، ایک نیٹ ورک بنے قوم کا، ایک نیٹ ورک بنے ہر چیز کا، کہ ہم ایک کمیونٹی کی طرح، ایک قوم کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں بغیر لڑے، اور ایشوز کو سمجھ سکیں اور ان ایشوز کے تھرو اپنی قوم کی ترقی کے راستے نکال سکیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے ملک میں بڑی بڑی کمپنی کیوں نہیں بنتی؟ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے ملک میں دریافت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری یونیورسٹیز ماشاءاللہ دنیا کی یونیورسٹیز نہیں بن سکتی؟ ریسرچ نہیں ایسی ہو سکتی جو دنیا اشش کرے؟ کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اتنی ایکسپورٹ کریں گے، میڈ ان پاکستان ہر جگہ نظر آئے؟ کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے روپی کی اسٹرینگتھ ایسی ہو کہ ہم ماشاءاللہ دنیا چاہے کہ ہمارے روپی اکٹھا کرے؟ کیا ہم صرف یہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم روپی بیچ کے ڈالر خریدیں؟ کیا ہماری پالیسی میکنگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ دنیا کہے کہ پاکستان کو دیکھو،
पाकिस्तान से सीखो। हम सारा वक्त कहते रहते हैं कोरिया से सीखो, चाइना से सीखो। क्या पाकिस्तान से हम यही सीख सकते हैं कि हम कैसे ज़वाल ला सकते हैं? हमें तरक्की की तरफ जाना है। हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, इकट्ठे बैठ के सोचेंगे, एक दूसरे का काम पढ़ेंगे, एक दूसरे की चीज़ें सुनेंगे, तो शायद तरक्की कर सकते हैं। वरना अफसोस है कि हम भीख ही मांगते रहेंगे। Okay. Some of you might have attended our first Econ Fest in Lahore. This is our second one. And as you can see, the theme is Islah. What is Islah? Islah is reform, correction. It's change. Why are we so reform averse? I think this is something we'll discuss today and tomorrow. Just this morning while driving to this Park China Center, Islam is definitely an Arabic word. I was just thinking that even if you think of Islam, it asks you to think, rethink, ijtihad, reform, islah, tajdeed, revive. All of us know बुरे हालात में हम I'll be bilingual क्योंकि ये हमें बहुत क्रिटिसिज्म आती है कि जी आप आम लोगों की ज़बान में बात नहीं करते हैं, आप अंग्रेज़ी में करते हैं. अब the only compulsion is that we have some people here who do not understand Urdu, so I'll keep it bilingual. I think इसमें कोई अब शक नहीं है कि हम सबको ये रियलाइजेशन है कि हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है. मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पंजाबी समझ आती है. आई एम समवन हु बिलीव्स इन फोक विजडम. पंजाबी का एक मुहावरा है कि जिधर चोली विच दाने और दे कमले वी से आने. सैडली हमारी चोली इस वक्त खाली है. क्यों खाली है? इन चीज़ों को हमने सोचना है. इकोनॉमिक्स को समझा जाता है कि जी इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ जस्ट रिलेटेड टू अ फ्यू पीपल. नो, इट्स नॉट. इकॉन फेस्ट में हमारी ये कोशिश है कि वो सारी चीज़ें जिनका इकोनॉमी से ताल्लुक़ है एंड बाय इम्प्लिकेशन हम सब से ताल्लुक़ है, उनको हम इस अंदाज से बयान करें कि आप सब उसको रिलेट कर सकें. इसके प्रोग्राम पे अभी हम आगे जाएंगे. इसमें आपको पॉलिटिक्स भी मिलेगी क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी आई थिंक इन द एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको चाइल्डहुड पे मिलेंगे, इस पे आपको डेमोक्रेसी पे मिलेंगे, इस पे आपको हेल्थ पे मिलेगा, इस पे आपको एजुकेशन पे मिलेंगे, इस पे आपको इन्फ्लेशन, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी. ऊपर एक पूरा हमारा टेक जोन है क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर अब लाइफ इम्पॉसिबल है. आने वाला वक्त जो है वो एक डिजिटल डिवाइड का वक्त है. जो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा. हम यहाँ कैसे पहुँचे? It's not as if we haven't thought of reforms ever. We have. I mean, every now and then we hear about economic reforms, about governance reforms, judicial reforms, election reforms, local government reforms. But somehow, none of that reform has taken us to where those reforms intended. If you look at our GDP growth, this has been our trend. Boom, bust, boom, bust, boom, bust. Dr. Nadeem, why it has been so? I think, Nayab, ever since Pakistan was born, if you recall, we had a conversation with Gus Papanek. Gus Papanek ji was the first guy who came to Pakistan, well, one of the early guys with the Harvard Advisory Group. And they made policies for us. And he said we were not equipped to make policies, and therefore the US aid or the Harvard Advisory Group set up, the HAG, Mahbub al-Haq and the Harvard Advisory Group set up a planning commission and PIDE. But somehow in this country we have not been able to mainstream economic thinking. We have economics graduates, we have PIDE, we have a few other think tanks, but our policymakers don't look to them, they look beyond them, they look elsewhere.
And most important of all, our policymakers think that they know it all. Everybody in the government thinks solution तो हम सबके पास है, implement नहीं होती, तो implement आप खुद करनी है, नहीं होती. Implement इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास solutions ही नहीं है. We don't have solutions क्योंकि हमने deeply सोचा ही नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए हम ये कॉन्फेस कर रहे हैं. हमारी ग्रोथ आप देखें अप एंड डाउन है. इसके अगर आप देखें हमारी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी रेट जो सी है बहुत ही लो है. दुनिया में सबसे लो हमारी प्रोडक्टिविटी रेट है. उससे आगे चले तो आप देखें हमारी इन्वेस्टमेंट रेट दुनिया में सबसे लो है. क्या वजह है? क्या हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? Are we incapable of thinking of investment ideas? Are we incapable of working hard? These are questions that you have to ask yourself. You have to ask you are young people have to ask it कि क्या हम क्या कर सकते हैं. उसके बाद Obsession with going to the IMF. Oh yeah, of course. Yeah. The next session we'll talk about it, but right now देखें we've been to the IMF for 24 times now. 23 times this is the 24th program. And inshallah we'll have the 25th. Inshallah we'll have the 26th. Inshallah we'll have the 27th. Do we have the will to get out of the IMF? What is the IMF? IMF is the emergency ward of the world. आप उस बंदे को जो इमरजेंसी वार्ड बार बार जाएगा उसको क्या कहेंगे? यार ये क्या हो रहा है माइक को? आप उस बंदे को जो बार बार इमरजेंसी वार्ड जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे ना कि either he's an addict or he's stupid or he's mad. Unfortunately, that's what Pakistan is. We keep going to the IMF again and again. Why do we go to the IMF again and again? Then of course, the emergency ward will not make you healthy. Emergency ward will only patch you up and say, go yaar, now look after yourself. But as soon as we get out of the IMF, you heard Nawaz Sharif just now say, we did it, but you didn't do it. In fact, that program, Masood is here, talk to him, that program was not well implemented. We've never implemented a program well, but our solutions don't even lie in the program. Our solution lie deeper in the system. Tabhi hum ye kar rahe hain, we are doing this Econfest so that you can discuss the solutions that are much deeper in the system. IMF only talks about the big accounting identities, the fiscal deficit, the current account, and the monetary policy. That's all the IMF talks about. But when you got deeper rot, like we have Permissionistan, when you got a permission system that destroys all effort, what can you do? So there are all these issues that we'll discuss. Ab uske baad ye dekhiye, please. This is great. Please note the date. This is 1950 or something. Yeah. Our forefathers had guessed it right. We are on these crutches. Our forefathers had it right. We are on crutches of aid. We are on crutches of development, of funding. We don't think. We don't. नहीं ठीक आ रही आवाज. We don't think कि हमारी crutches aid की है. But हम उन पे फंसे हुए. हमारा प्राइम मिनिस्टर जो नहीं आता है भीख मांगने को भाग जाता है. तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जी. Fahim, has the government ever thought about it? Have we ever made any plans? नायाब, हमें प्लान्स बनाने का बहुत शौक है. हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम प्लान्स बनाएं. हर गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, हर सेक्रेटरी को अच्छा लगता है, हर प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगता है, हर सीएम को अच्छा लगता है. आप अगर गवर्नमेंट की अलमारियां उठा के देखेंगी तो आपको बेतहाशा एनुअल प्लान्स मिलेंगे, 5 ईयर प्लान्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान्स मिलेंगे, विजन मिलेंगे. उसके बाद इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड जो MDGs, SDGs जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, वो मिलेंगे. इसके अलावा सेक्टोरल प्लान्स मिलेंगे, रेगुलेशंस मिलेंगी, पॉलिसीज़ मिलेंगी. बट मसला ये है कि हम प्लान बनाने के बहुत शौकीन हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते. पढ़ता कोई नहीं है उनको, खोल के देखता कोई नहीं. तो प्रॉब्लम ये है कि देयर आर लाइक टू मच फोकस ऑन प्लानिंग विदाउट एक्चुअल रिजल्ट्स एंड लर्निंग. हमारा जो आपके लिए फ़िलॉसफी है डेवलपमेंट की, वो प्रोजेक्ट्स हैं. PSDP हो गया, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हो गए. हमें मज़ा आता है कि हम सड़कें बनाएं, हम पुल बनाएं, हम बिल्डिंग्स बनाएं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएं जिसके अंदर पजीराई मिले हम सबको. अभी अगर आप PSDP का देखें तो अराउंड 1200 से ज़्यादा उसके अंदर स्कीम्स हैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप
کبھی پوچھیں کہ ان کی امپیکٹ ایویلویشن کبھی ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. کیا ہم نے اس میں سے سیکھا؟ ہم نے نہیں سیکھا، کیونکہ ہم نے کبھی ایویلویشن نہیں کی اس کی. ہم نے دیکھا نہیں کہ اس میں سے اچھے ریزلٹس آئے ہیں تو ہم ان کو کیسے ملٹیپلائی کریں، اور اگر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو ہم اس کو کیسے سدھار لیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پورے اس ڈسکورس کے اندر جہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں. اگر ہم اس وقت ریفارم نہیں کر رہے تو مے بی اٹ وڈ بی جسٹ ٹو لیٹ فار اس، اینڈ مے بی وی آر آلریڈی ٹو لیٹ. بٹ نیا بھی یہ ریفارم کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. ہر IMF کی رپورٹ میں ریفارم لکھا ہوتا ہے، ہر ورلڈ بینک کی رپورٹ میں ریفارم لکھا ہوتا ہے. پر کیا ہم وہی ریفارم کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں یا کیا؟ نہیں. فائٹ کے وی ہیو 3 main forums through which we are disseminating our research and talking about reform, because most of our research is policy oriented. It's the Rasta program, we'll come to it later, PIDE as such, the think tank, and then PSDE, Pakistan Society of Development Economists. It's the oldest society of social scientists. It's not just economist, and its conference is coming up as well. If we look at what PIDE has been talking about, I mean, sorry for sounding a little immodest, but we have taken lead in talking about cities. PIDE was the first place where we said that if Pakistan has to grow, cities have to be the engine of growth. Then demographic dividend. It was 18 years back we said that Pakistan will have a youth bulge and this is the time to do something about it. And now we can see the very, very angry, annoyed youth around us, and it's not without a reason. Then we've talked a lot about civil service reform, and somehow every time we talk about reform, people get angry. We talk about civil service, civil servants think we are against them. We talk about educational reforms or the poor quality of education, teachers think we are against them. When we say that think tanks are not performing their duty, the research community in Pakistan is not working the way it should, researchers get angry. So somehow reform has not gained traction in Pakistan, کیونکہ ریفارم سے سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کسی کے خلاف ہیں جب آپ ریفارم کی بات کر رہے ہیں, which is not the case, which is definitely not the case. PSDP کے بارے میں فہیم نے بات کی, doing development better. This talks about better use of PSDP. So if you look at what PIDE has been talking about, practically we have been talking about reforming every aspect of economy. Sorry to interrupt you. The point is کہ ہم جو ریفارم کی بات کر رہے ہیں ڈیپر ریفارم آف دی اکانومی, ادھر بند کر دیں. جو بات کر رہے ہیں اپنا باقی لوگ جو بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اسٹرکچرل ریفارم جب کہتے ہیں ڈونرز, ان کا مطلب ہے ٹیکس اور لگا دو. تو ہم اس لیے سیشن بھی کر رہے ہیں ابھی ٹیکس چیٹس, ہم کوئی بھی ٹیکس ہمارے پر بہت لگا ہوا ہے. اچھا, امریکہ میں جب ریسیشن آتی ہے, یورپ میں آتی ہے, تو کہتے ہیں ٹیکس نیچے کر دو. ہمارے پاس جب ریسیشن آتی ہے کہتے ہیں ٹیکس بڑھا دو. تو یہ بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ٹیکس پالیسی کیا ہونی چاہیے, یا از ریفارم جسٹ ٹیکسیشن. ہم اس سے توڑ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ریفارم بہت ڈیپ چیز ہے. جی میڈم, fair enough. So the point is that we have been talking about a reform, and what we want to talk to you about is a domestic reform agenda. What we want to do is own our own reform agenda. یہ نہیں کہ وہ رپورٹ آ گئی باہر سے, اس کو جیسے ہم نے انرجی میں کیا ہے, انرجی میں ہم نے کیا کیا, باہر سے رپورٹ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو, آدھا ہوا آدھا نہیں ہوا, کچھ ہو گیا وغیرہ. ہمارا نقصان ہو گیا. We've lost about 13 trillion rupees in energy over the last 15 years. We are hemorrhaging like a dead, God knows, dying body right now. And we can't fix the energy reform. That's why we've got governance issues. But let's, Fahim, talk about Rasta. Ji sir, Rasta is like research for social transformation and advancement. It's the largest economics and public policy research network in Pakistan. It's a unique project, government funded. اور منسٹری آف پلاننگ جو ہے یہ اس کی اسپانسرڈ منسٹری ہے, PIDE اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو
ये है कि इसमें कॉम्पिटिटिव ग्रांट प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम हर साल 2 दफ़ा कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल अनाउंस करते हैं जिसमें लोग अप्लाई करते हैं रिसर्च ग्रांट्स के लिए. देयर इज़ अ वेरी रिगरस प्रोसेस जिसके थ्रू एवेल्युएशंस होती हैं, रिव्यू होते हैं उन एप्लीकेशंस के, और फिर अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं. इसके साथ जो दूसरी स्ट्रीम है वो है DDR विच इज़ डिमांड ड्रिवन रिसर्च. उसमें हम गवर्नमेंट से आई हुई जो रिक्वेस्ट होती है रिसर्च की, हम उसके ऊपर अगेन रिव्यू प्रोसेस के बाद जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उसको कमीशन करते हैं. सो देयर आर फ्यू नंबर्स ऑन द स्लाइड इफ़ यू लुक एट. पिछले 3 सालों में रास्ता ने बहुत कुछ अचीव किया, जिसमें अगर आप देखें तो अब हमारे पास जो नेटवर्क है रास्ता का, उसमें 60 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड थिंक टैंक्स जो हैं वो इस नेटवर्क का पार्ट है. अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि वो पार्ट हैं तो पार्ट से क्या मुराद है? पार्ट से मुराद ये है कि वो हमारे लोकल पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है रिसर्च के अंदर. फॉर इंस्टेंस हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमें ज़ोब में, गवादर में, सखर में, मर्दान में, किसी भी इलाके में, इवन गिलगित में, अगर हमने कोई रिसर्च कंडक्ट करवानी है, कोई डाटा कलेक्शन करवानी है, कोई काम करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब हम यहाँ से एक टीम तैयार करेंगे, उसको हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लॉजिस्टिक्स देखेंगे, जाएंगे. नहीं, लोकल पार्टनर्स की मदद के साथ हम ये रिसर्च उन्हीं पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ और अपने जो रिसर्चर्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे उनके साथ मिलके हम रिसर्च कोलैबोरेशन के अंदर कंडक्ट करते हैं. अगर आप देखें तो इस नेटवर्क में अब तकरीबन 2300 से ज़्यादा रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस नेटवर्क का पार्ट हैं. 6ठा राउंड जो है वो हमारा शुरू हो चुका है. तो अराउंड 935 एप्लीकेशंस हमें पिछले 5 राउंड्स में मौसूल हुई हैं. 82 हमने अवार्ड्स इसमें दिए हैं और इसमें से 57 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. आप हमारी रास्ता की वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो पब्लिकेशंस हैं वो ओपन सोर्स पॉलिसी के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं. इनमें से कुछ हमने पब्लिकेशन इस स्लाइड में ऐड की हैं आपके लिए. मैं क्विकली आपको कुछ बता दूं. जिस तरह कॉर्नर में आपको पावर सेक्टर की बुक नज़र आ रही है, तो पाइड ने रास्ता के साथ एक पावर के ऊपर कमीशन बनाया. एक हाई वेरी क्वालिफाइड कमीशन था. ये फहीम, हमारा जो भी हम काम करते हैं उसमें ये नहीं है कि जी सर पाइड के 2 लोग बैठेंगे और वो काम कर रहे हैं. वी ट्राई टू टेक इवन डिसेंटिंग ओपिनियंस ऑन बोर्ड, कि बाद में जो चीज़ आ रही है उसकी ओनरशिप हो. हमने जो पहले मैंने दिखाया, हमने जो ग्रोथ एजेंडा बनाया, देयर वर अ लॉट ऑफ डिसेंटिंग वॉइसेस देयर, लेकिन इन द एंड हमने उनको इवन इंक्लूड किया उसमें. तो इस पूरे नेटवर्क का आइडिया यही है कि everyone is included, every voice is heard, and these are just some of the publications. Just like Rasta, I said we have PSDE. Dr. Nadeem, would you like to talk about it? अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्लाइड पीछे चली जाए, एक चीज़ मिस हो गई उसमें, बल्कि 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें मिस हो गई. Okay, so there is one thing, if you can see, there is a logo on Citypedia, like Wikipedia, Encyclopedia. रास्ता का भी एक प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है जिसमें हम पाकिस्तान के इनिशियली जो 20 शहर हैं हमने जो सिलेक्ट किए हैं उनके ऊपर हम एक कंप्लीट सिटीपीडिया हम डेवलप कर रहे हैं. इट मीन्स कि अगर आप किसी भी शहर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वहाँ की सहूलियात क्या हैं, वहाँ का जो इकनॉमिक बाउंड्री है वो क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्या है, उसका स्प्रॉल क्या है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इस तरह की बेतहाशा जो डाटा है उस सारे को हम इन सिटीपीडिया में शामिल कर रहे हैं और उसमें से रिपोर्टें हमारी निकलेंगी. इसके साथ साथ आपने शायद देखा होगा बेसिक्स का एक सर्वे है जिसमें टाइम टू टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कुछ नंबर्स आ रहे हैं सामने, उस पर बहस हो रही है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं. तो आई वुड लाइक कि नायाब उसको एक्सप्लेन करें कि वो बेसिक्स क्या है. Basics is an acronym for beliefs, attitude, social capital, institution, community, and self. I mean, I would say this is the softer core that binds a society. इसमें जिस तरह हमने आइडेंटिटी के बारे में सवाल किया, I thought it was a very straightforward question कि आप कौन हैं.
I thought people would just say either they are a Muslim or a Pakistani, and the response we got was very, very complex. It's a multi-layered identity, اور اس میں ان دو چیزوں کے بیونڈ بھی بہت چیزیں تھیں، ایتھنیسٹی، سیکٹ، پروفیشن، ریلیشن شپ. اس میں ہم نے دیکھا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کیا ہے، اس میں سوشل انوالومنٹ کتنی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں اس میں ہم نے دیکھی. فہیم یہ سیشن لمبا ہو رہا ہے، ہمیں تھوڑی جلدی آگے جانا ہے. پی ایچ ڈی جی نقوی صاحب پائٹ کے ڈائریکٹر تھے. ان کی ویژن تھی، انہوں نے بنایا میرا خیال 1987-88 میں سمتھ میں انہوں نے بنایا. یہ اب تک چل رہا ہے. ہر سال اس کی کوشش یہ ہے کہ وی میک اے پاکستان سوسائٹی فار آل سوشل سائنٹسٹ. اس کو کہتے ہیں پاکستان سوسائٹی فار ڈیولپمنٹ اکنامکس. بٹ دی آئیڈیا اگین از ٹو بلڈ اے نیٹ ورک. ہمارے ملک میں ڈیولپنگ کنٹریز دا بگیسٹ پرابلم از وی ہیو نو نیٹ ورکس آف نالج. آپ باہر چلے جائیں تو امریکن اکنامک ایسوسیشن، رائل اکنامک سوسائٹی، آل دیز تھنگس میٹر. ان فیکٹ جو کہتے ہیں ڈیموکریسی از ایکچولی اے بنچ آف ایسوسیشنز گیٹنگ ٹوگیدر ایز اے پارلیمنٹ. We don't have these associations, so we are trying to make these associations. اور جو ریفارم آتا ہے وہ ریفارم آتا ہے جب ایسوسیشنز مل کے آپس میں آواز اٹھائیں. میں جب پلاننگ کمیشن تھا میرے پاس لوگ آتے تھے کہ I know everything, please implement. And I used to tell them, but I don't know. What you know is backed by a lot of people. So once we have knowledge networks, they can develop ideas. So that's the thinking behind the PST and Rasta both. They are two different things. Rasta is doing research, actively doing research. What Fahim said has to be backed up by another thing. راستہ کی جو ایڈوانٹیج ہے اٹس آل پاکستان. جہاں باقی لوگ جب کرواتے ہیں وہ صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں بہت سارے بلوچستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، اب سندھ وغیرہ. سو وی فوکس آن آل دا یونیورسٹیز ان پاکستان، ناٹ جسٹ ون، اینڈ وی ٹرائی اینڈ انکلوڈ دیم. تو پی ایس ٹی کے یہی ہے، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اب یہاں سے پہلی کانفرنسز اسلام آباد میں ہوتی تھی، پہلی 30-40 کانفرنسز یہاں ہوئی ہیں. اب ہم باہر لے گئے. وی گون ٹو کوئٹہ، پشاور، گلگت، ملاکنڈ، اب ملتان جا رہے ہیں. ابھی 20-25 دن میں ملتان میں کانفرنس ہو رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے پاکستان، آپ جو بچے باہر سے آئے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹی، وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ یو اینڈ وی ہوپ دیٹ یونیورسٹیز ول فالو آور لیڈ اینڈ یونیورسٹیز ول بز ود ایکسائٹمنٹ. جس طرح ہم ویبینارز کراتے ہیں، جس طرح ہم یہ چیزیں کراتے ہیں، دس از آل فار یو گائز. We have to learn together and we have to talk together. یہ ہماری ambition ہے. جی میڈم. While PhD is, I would say, more academically oriented, EconFest has general public as its focus. یہاں ہم اسی conversation کو ایک مختلف انداز میں ایک عام انسان تک لے کے جا رہے ہیں. فہیم بتائیے EconFest کیا ہے؟ چھٹی کا دن تھا. آئی واز ایٹ ہوم. ایک کال آئی ڈاکٹر ندیم کی، اکثر آتی ہوتی ہے، کبھی لیٹ آورس میں آتی ہے، کبھی چھٹی کے دن آتی ہے. کہا فہیم ایک آئیڈیا آیا، چلیں ایک اور صحیح. انہوں نے کہا یار یہ لٹریچر فیسٹ والے ہیں، فیسٹ والے ہیں لاہور میں، یہ سارے فیسٹ کر رہے ہیں تو ہم فیسٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی اکنامکس از سو بورنگ، اس کو کوئی فیسٹیوٹی میں کنورٹ کریں اس کو. ایڈیشنل بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ سارے فیسٹیولز جو ہیں دے ٹاک اباؤٹ پاسٹ، دے ٹاک اباؤٹ مغلز، دے ٹاک اباؤٹ دا کلونیل پیریڈ. نو بڈی از کنسرنڈ اباؤٹ آور فیوچر. تو ہمیشہ کی طرح ہم لگ گئے اس کے اوپر. ہم نے کہا جی ہو جائے گا. تو وی آر ویری ہیپی ٹو شیئر کہ ہم نے لاہور چوز کیا. ڈاکٹر ندیم نے کہا نہیں، ہم نے ان کی پچ پہ جا کے کھیلنا ہے لاہور پہ، اور الحمرہ میں ہی کرنا. میں نے کہا سر پہلا اسلام آباد میں کر لیں، لاہور نہیں چلتے، اسلام آباد کر لیتے ہیں، لاجسٹکلی پہلا ہوگا، آسان ہوگا ہمارے لیے، چیلنجنگ اتنا نہیں ہوگا. کہ نہیں جانا وہیں ہے. کہ پھر چلیں. الحمدللہ لاہور ایکون فیسٹ واز اے گریٹ سکسیس. ہمارے پاس وہاں پہ 25 پارٹنرز نے پارٹیسپیٹ کیا، 13 یونیورسٹیز تھیں. 2 دن میں ہم نے 34 سیشنز کیے وہاں پہ. بہت ساری پذیرائی ہمیں وہاں پہ ملی، اور نیا انداز ملا ان موضوعات کو بحث کرنے کا. جیسے ڈاکٹر ندیم نے کہا پی ایس ٹی کا اور دوسری کانفرنس سے ایکون فیسٹ بہت مختلف ہے کہ یہاں پہ ایک عام آدمی سے متعلق جو مسائل ہیں اس پہ کھل کے بحث ہوتی ہے اس کے اوپر. سو ناؤ وی آر ان اسلام آباد، اور مجھے ہال دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی راول پنڈی نے اور اس کے ارد گرد کے جو شہر ہیں انہوں نے ہمیں اچھا رسپانس دیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.
آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پارٹنرز دونوں سائڈ پہ جو بینرز میں ہیں، ہمارے پاس اس ایکون فیسٹ کے لیے 33 پارٹنرز ہیں، تو آپ لوگوں نے لاہور کو بیٹ کیا ہے، اس پہ بھی کلیپ کر دیں. جی نائب. To the theme. So where are we today? These are just some of the problems. We've already talked about our stagnant growth. The boom bust cycle is no more a cycle. It's almost like a continued bust period. Low investment, import export balance हमारा totally off. Exchange rate, आपने बाहर टी-शर्ट भी देखी होगी कि डॉलर यार तंग ना कर. हम हर वक्त डॉलर की एक्सचेंज रेट के बारे में ऑब्सेस्ड हैं, एंड नॉट अगेन विदाउट अ रीज़न, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है. इन्फ्लेशन, हर इंसान की ज़िंदगी को इस वक्त एक इन्फ्लेशन, सबसे पहली बात मेरे ख्याल में जो अगर आप टीवी भी ऑन करें तो महंगाई ने मारा हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग यूथ एंड दैट टू अमंग एजुकेटेड यूथ. पाइड ने इस पे अगेन आई वुड से कि पहला इदारा जिसने बहुत हमने आवाज़ उठाई है कि हम लोगों को तालीम दे रहे हैं लेकिन वो तालीम उनको कहीं लेके नहीं जा रही है. देन डेट एक्यूमुलेशन, हमारा डेट बर्डन ह्यूज है और वो जैसे जैसे हमारा एक्सचेंज रेट पुअर होता है वो आपका डेट और बढ़ रहा है. गवर्नेंस इश्यूज, लैक ऑफ इंडिजिनस पॉलिसीज, इस पे एक हमारा पूरा सेशन है जो कि आई होप आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि पॉलिसीज़ बना कौन रहा है पाकिस्तान में. लैक ऑफ इंडिजिनस पॉलिसीज़, लो प्रोडक्टिविटी, डेमोग्राफिक थ्रेट की हमने बात कर ली, अनस्किल्ड लेबर, फ्रीक्वेंट पॉलिसी शिफ्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वो सब मसले हैं जो कि हैं और इन पे हमने इन 2 दिनों में बात करनी है. बात कैसे करनी है? थ्रू नेटवर्क्स. नेटवर्क्स इज़ समथिंग जिस पे आजकल हम बहुत फोकस कर रहे हैं. अकेले कोई कहीं नहीं पहुंच सकता अनलेस we work together. Then we have to engage in policy debates and share ideas. फ़हीम, बताइए ये कैसे हल होंगे मसले? जो पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं और दीगर सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो एक किताब ज़रूर पढ़ते हैं विच इज़ अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस. ये RAW रोड्स ने लिखी है. उसने बड़े मज़े की एक बात कही उसने कि for complex problems there is always a simple solution which is always wrong because messy problems need messy solutions. आज हम जहाँ पहुँच चुके हैं वो messy problems हैं और उसका हल ये बिल्कुल छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स के साथ मासूमाना जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनसे नहीं होगा. हमें messy solutions चाहिए. उसमें विनर्स भी होंगे, लूज़र्स भी होंगे, उसमें तकलीफ़ भी होगी, बट हमें वो करने होंगे. अगर हमें एक दफ़ा चीज़ों को ठीक करना है और ये मान के ठीक करना है कि हमें अब इसके बाद दोबारा गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, तो चीज़ों को सही सिमत में लेके जाना पड़ेगा. हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको डीपली डिग करना पड़ेगा. ये मोटी मोटी रिपोर्टिंग, मैक्रो डाटा के साथ खेलना, ट्रेंड्स क्रिएट करना, ये रिपोर्टें, फैंसी रिपोर्टें, कलर्स, बड़े खूबसूरत प्रेजेंटेशंस, आप प्लीज़ बस कर दें. इनफ, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए. हमें अब वाकई में जिस टाइम पे हम पहुंच गए हैं, जो हमारा थीम है इस्लाह का, हमें अब इस्लाह चाहिए और हर कीमत में चाहिए. ये आपको भी वॉइस उठानी है. मैं यूथ से मुखातिब हूँ, ये आपने भी वॉइस उठानी है इसके लिए कि अब इनफ, अब हमें जो है वो चीज़ जो है उसको ठीक करना है. इसके लिए हमें रिलाई करना होगा गुड क्वालिटी रिसर्च के ऊपर जो इन्फॉर्म करे पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर. हमें जर्नलिस्ट अप्रोच नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए. हमने टेक्नोक्रेट्स चाहिए, हमें प्रोफेशनल्स चाहिए जो गाइड करें पॉलिसीज़ को. इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये एक बड़े मज़े की बात है जो मैं लास्ट बात कर रहा हूँ नायाब, कि ऐसा नहीं है कि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इदराक नहीं है. इस हॉल में बैठे तमाम लोग बिल्कुल बाशऊर हैं और उन्हें पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं. हम अड़क कहाँ पे रहे हैं कि जहाँ पे हम उसके हल के लिए एक दूसरे के साथ मिल के बातचीत करके कंसेंसस के साथ आगे नहीं चल पा रहे.
اور کنسنسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں 100% ہر چیز پہ کنسنسس ہو. میں نے کہا ونر اور لوزر ہوں گے, بٹ ہمیں آگے چلنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں سخت ڈیسیجنز لینے ہوں گے. نایاب. Dr. Nadeem, your 4 favorite sessions of this EconFest. Every one of you have this booklet. It's outside. The QR codes are there. उसमें अगर आप उस QR code को करेंगे तो it will take you to the EconFest website. ये वहाँ भी मौजूद है. ये मेरे पास नहीं है. ये एक abridged program भी है जो कि आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं और ये आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं. इसके अंदर भी हाँ QR कोड आपका इस छोटे एब्रिज्ड प्रोग्राम पे भी है और इस पे भी है. दिस विल टेक यू टू द EconFest वेबसाइट और उस पे भी ये प्रोग्राम है. जी, योर 4 फेवरेट सेशंस ऑफ 4 और 3. अभी हमें पता है हमने इस प्रोग्राम पे घंटों लगाए हैं, इसलिए हमें सारा प्रोग्राम बहुत अजीज है, लेकिन योर 4 बड़ा मुश्किल सवाल है. और जो मेरी इल्तिजा थी जो ये लोग नहीं माने कि यार ये तो हमें 5 दिन पे करना चाहिए, सब हर कोई एक सेशन पे जा सके. पर मसला ये कि चॉइस आ गई है, यहाँ हर वक्त 3 सेशन चल रहे हैं. मुझे समझ नहीं आती कहाँ जाए. फॉर एग्जांपल एक ये पर्क्स प्लॉट्स प्रोटोकॉल मेरा बड़ा फेवरेट है, आपको पता है मैं ट्विटर पे बड़ी इसकी बात करता हूँ, पर मैं वो नहीं जा सकता. तो मैं जाऊँगा गुड चाइल्डहुड पे, मुझे होना पड़ेगा, वहाँ जाऊँगा नहीं, सारा जाना पड़ेगा. गुड चाइल्डहुड क्या है, मैं आप सबसे पूछता हूँ क्या है, मुझे खुद नहीं पता. पर गुड चाइल्डहुड कोई चीज़ होनी चाहिए. यूथ हमारा फ्यूचर है और हम उसकी चाइल्डहुड पे गौर नहीं करते, हम बल्कि यूथ पे गौर नहीं करते. तो हम इस चीज़ पे गौर करेंगे. चले, एक तो मैं ये कह देता हूँ. दूसरा जो मेरा फेवरेट सेशन है वो ये है, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा. देखिए जी, ये इज़ डेमोक्रेसी जस्ट इलेक्शंस. भाई डेमोक्रेसी, सब कहते हैं इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो. इलेक्शन कराने का कोई मकसद होता है, किस लिए करा दो? अगर इक़्तिदार बांटना है वो तो कोई बात ना हुई. क्या आपने इलेक्शन में चाहते क्या? यहाँ बात आ जाती रिफॉर्म की, आपकी बात आती थी, डू यू वांट एनी रिफॉर्म और नॉट? एंड मसला ये है कि यू गाइज डोंट वांट रिफॉर्म, यू जस्ट वांट टू इलेक्ट लीडर्स, क्योंकि हमारा कल्चर पीरी मुरीदी का है. तो पीरी मुरीदी से निकल जाए, मॉडर्नाइज हो जाए तो बात बनेगी. तीसरा मैं अगर सोचूं तो कौन सा फेवरेट है मेरा, तो बहुत अच्छा है मेरा ख्याल. एक है आर वी ए टैलेंट रिपेलेंट कंट्री. क्या हम अपने बच्चे बाहर भेज देते हैं पढ़ा लिखा के? क्या हमारे पास यहाँ बच्चों की जगह है जो पढ़े लिखे हों? क्या जो हुनरमंद लोग जो बाहर चले जाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे लॉयर्स, अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, क्या वो वापस आ सकते हैं या वहीं रह जाते हैं? क्या इक्का दुक्का बंदा यहाँ आता है जैसे शौकत अजीज़ है फिर वापस चला जाता है? क्या हमारे लीडरान भी बाहर चले जाते हैं, इक़्तिदार करने के लिए आ जाते हैं? तो टैलेंट रिपेलेंट मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. फिर एक और सेशन है बड़ा मज़ेदार, एलीट कैप्चर. सब कहते हैं एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर. मुझे नहीं समझ आती एलीट कैप्चर क्या होता है. तो चले मैं यहाँ रुक जाता हूँ, वरना मैं तो लगा रहूँगा सारे दिन. अच्छा, मेरा भी यही है ख्याल कि ये सारे अगर आप प्रोग्राम देखें, हम ये जब प्रोग्राम तैयार भी कर रहे थे तो बहुत कंपीटिंग सेशंस हैं जो पैरेलल भी चल रहे होंगे और कुछ मिस करना पड़ेगा. हो सकता है किसी एक जगह आधा अटेंड करें, फिर दूसरी जगह अटेंड करें, बट ये करीब करीब हैं तीनों हॉल. आप हॉल 1 में बैठे हैं और इसके बाहर ही निकलेंगे तो हॉल 2 और 3 ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही हैं. तो इट्स नॉट समथिंग कि आपको ट्रेवल करके ज़रा दूर कहीं जाना है इस तरह. सो मेरा भी जो, अगर आप मैं देखूँ, मैं सोच रहा था, मुझे पता था ये सवाल आना है, तो मैं जब सोच रहा था तो मैंने कहा कि मेरा भी सबसे फेवरेट जो है वो एलीट कैप्चर है. इस सेशन के अंदर हम ये डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि एलीट क्या है. पहले तो हम डिफ़ाइन करें कि एलीट है कौन, उसके बाद हम ये डिफ़ाइन करें कि कैप्चर से क्या मुराद है, और उसके बाद फिर हम देखें कि इसके ऊपर क्या बहस की ज़रूरत है. क्योंकि ये बड़ा एक आम सी बात बन गई है नायाब. हम कह देते हैं जी एलीट कैप्चर है, जिस मसले का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, जिस पे हम बहस नहीं करना चाहते, हम कहते हैं जी एलीट कैप्चर इसलिए हो नहीं सकता. भाई क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिसएग्री कर सकते हैं ज़रूर. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एलीट है वो किसी भी, अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें और उसकी हिस्ट्री में देखें तो उसकी डेवलपमेंट में, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसकी प्रोग्रेस में एलीट का बहुत किरदार है. यहाँ पे हमने एलीट को गाली बना दी है, जिसके पास पैसा आता है उसके पीछे हम पड़ जाते हैं वहाँ पे. तो एलीट मेरी नज़दीक तो गाली नहीं है, एलीट्स आपको चाहिए जो प्रोग्रेस करेंगे. तो इस पर हम बहस करेंगे. दूसरी जो है वो है कि आर वी टैक्स चीट्स, क्या हम टैक्स चोर हैं?
क्या आप टैक्स चोर हैं? हम सब टैक्स देते हैं। फिर हम टैक्स चोर क्यों हैं? हमें हर साल बताया जाता है रिपोर्ट के अंदर कि जी पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं। मेरा तो ख्याल है हम सब टैक्स देते हैं। वो रिपोर्ट अक्सर बाहर से आती है भाई, अंदर से नहीं आती। तो इस पे बहस होगी कि हम क्या टैक्स चोर हैं, और अगर नहीं हैं तो फिर गलती पे कौन है? तो उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इस्लाह लाने की ज़रूरत है। बट ये टैग लगा देना हमारे साथ कि हम टैक्स चोर हैं, क्या ये जायज़ है? इस पे बात होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 ओपन माइक सेशंस हैं हमारे दोनों दिनों में। उसमें से एक जो है आज के दिन वो 4:30 बजे होने जा रहा है, द टेल ऑफ ट्विन सिटीज़, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुतल्लिक, मेरा शहर मेरा घर। हम उस पे यहाँ पे ओपन माइक करेंगे। ओपन माइक क्या है? जिसपे यहाँ पे सिर्फ एक मॉडरेटर खड़ा होगा और आप सब उसमें इनवाइटीज हैं। आप सब उसमें शिरकत करेंगे और आपकी वॉइस जो है वो सुनी जाएगी यहाँ पे। तो ऑडियंस जो है वो ओपन माइक में शिरकत करती है। यहाँ कोई स्पीकर नहीं होगा, कोई पैनलिस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप लोगों ने अपने फेवरेट बताए हैं तो मैं भी बताऊंगी। शायद मुझे पॉलिटिक्स का थोड़ा शौक है, इसलिए अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द 18th अमेंडमेंट। आजकल बहुत शोर है कि जी 18th अमेंडमेंट हमारे हर मसले की जड़ है। आई थिंक 18th अमेंडमेंट हमारे हर मसले की जड़ नहीं है, उसको पूरा ना इम्प्लीमेंट करना हमारे, अगेन यू कैन डिसएग्री। देन इज डेमोक्रेसी जस्ट इलेक्शन? इट इज़ टुडे, आई विल बी मॉडरेटिंग इट एंड आई होप कि इसमें एक अच्छी डिस्कशन आए। Then the invisible 50%. I don't have to tell you what 50% it is talking about. It's the invisible females of Pakistan. आप बहुत सारी इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई, वो इवन मैं आपको तस्वीर दिखा सकती हूँ, उसकी क्लोजिंग की तस्वीर है, एंड देयर आर लाइक 60 men and me in that picture. आप बहुत जगहों पे जाएं, आपको पब्लिक स्पेसेस में फीमेल्स नहीं नजर आती हैं। इस हॉल में कितनी फीमेल्स हैं? यस, गुड। सो दिस सेशन वुड बी अबाउट द इनविजिबल 50%। यहाँ हैं लेकिन आपको बहुत जगहों पे नजर नहीं आती है। हमने ये सेशन थोड़ी लेट शुरू किया था, इसलिए इसको बस अब हम खत्म करेंगे। एक सेकंड, आई कांट लेट यू एंड दिस ऑन दिस थिंग। हमारी इकोनॉमिक सेशन भी बड़ी अच्छी है, खुदा के वास्ते उनका ना भूलें। एक चीज़ फॉर एग्जांपल है, हम बात कर रहे हैं कि हमारी फर्म्स क्यों नहीं ग्रो करती। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता विदाउट बिग फर्म्स। हमारी छोटी मुन्नी फर्म्स हैं, एंड ग्रो क्या है? सारी $1 बिलियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। वी हैव नो बिग फर्म्स, वी कैन नॉट ग्रो विदाउट बिग फर्म्स। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ जो है, बड़ी मज़ेदार सेशन है, वो भी सोचना चाहिए। अब सब योर यंग पीपल, यू गोइंग टू सेव, वेयर आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट? हम आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में हैं कि नहीं है, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हम बात ही नहीं करते कि फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो इसकी हम बात करेंगे। तीसरी सेशन बहुत ज़रूरी है, इसके साथ रिलेटेड बहुत अच्छी सेशन है। पाकिस्तान का एक नया नाम है, हमने पाकिस्तान के बहुत सारे नाम रखे हुए, एक बड़ा अच्छा नाम है परमिशनिस्तान, जहाँ हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये मुल्क वो है, प्लीज़ सर मे आई गो टू द बाथरूम, यहाँ हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कोई काम करना हो, मैंने खोखा लगाना है, परमिशन ले लो। हमने स्ट्रीट वेंडिंग पे काम किया, हमने स्ट्रीट खोखे लगवाए, उन्होंने आके तोड़ दिए। तो अगर हर चीज़ तोड़ देनी है, एंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म कर देना है, तो फिर क्या होगा? तो परमिशनिस्तान भी देखे। तो क्वाइट फ्रैंकली ये सेशन भी तो हाईलाइट करें ना मैडम, डोंट जस्ट थिंक ऑफ वेमेन काफ़ी सिर पे चढ़ गई हैं। सर, मैंने आपसे आपके फेवरेट सेशंस पूछे थे, आपने भी उनका जिक्र नहीं किया। ओके, अब मैं ये स्पेशली स्टूडेंट से कहूँगी, प्लीज़ इस जो हमारी प्रोग्राम की बुकलेट है, इसको संभाल के रखें। आपके पास इस बुकलेट में आने वाले 10 साल के लिए रिसर्च एजेंडा है। किसी ने थीसिस करना है, किसी ने टर्म पेपर करना है। इट्स फुल ऑफ रिसर्च आइडियाज़, और रिसर्चर्स भी ऑफ कोर्स। नहीं, रिटर्न नहीं करनी। डॉक्टर नदीम का था कि जी लोग इसको फेंक के चले जाते हैं। आइडियली हम पेपर पे नहीं जाना चाह रहे थे, एंड वी जस्ट वांटेड टू कीप इट डिजिटल। देन somebody said कि why do you think everybody has a smartphone? Not everyone can access the digital copy. So we got it printed. तो प्लीज़ इसको फेंकिएगा मत,
یا تو سنبھال کے رکھیے گا استعمال کے لیے یا ریسیپشن ڈیسک پہ واپس کر دیجیے گا. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. دس واز جسٹ اے کرٹن ریزر فار واٹ یو شوڈ ایکسپیکٹ ان دا کمنگ 2 days. اور اس کے ساتھ ہی ہم ویل شفٹ ٹو آور نیکسٹ سیشن. تھینک یو.